Good afternoon, everybody. My name is Rakesh Kumar. I'm your ACC tutor for performance management from Kalyan Educational Institute. And today we discuss about the paper 5, F5 or performance management. So, this one a live or recorded lecture for PM. And today we discuss aim and the objective of paper. क्या इसका मेन पर्पस है पेपर का to develop knowledge and skill in application of management accounting technique to quantitative and qualitative information for planning, decision making, performance evaluation and control. आपको इस पेपर के थ्रू क्या जो आपको स्किल डेवलप करनी है वो एक तो नॉलेज करना है आपको वन योर नॉलेज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और दूसरा क्या है आपको स्किल डेवलप करना है इस पेपर का ये पर्पस है जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक में यूज होने वाले क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग डिसीजन मेकिंग परफॉर्मेंस एवल्यूशन एंड कंट्रोल पर्पस के लिए ओवरऑल पोजीशन ऑफ द पेपर ओवरऑल पोजीशन ये क्या है आपका स्किल लेवल का पेपर है on this one now the name change go to SBL strategic business leadership दिस वन अ कॉम्बिनेशन ऑफ P1 एंड P3 दोनों ही पेपर को कंबाइन होके एक न्यू इन्होंने पेपर बना दिया है दैट इज कॉल्ड SBL एंड F5 का ही एडवांस वर्जन है P5 दैट इज योर स्पेसिफिक APM राइट So format of the paper skill CBE format होगा to CBE format because the COVID situation that's why the center based exam are closed now and you can go for only home based exam in India. I hope you know well. Then section A में क्या होता है आपको 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं 15 ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ जो कितने नंबर का रहेगा 2 मार्क ईच और इसमें से मैक्सिमम मार्क जो होंगे वो 30 मार्क्स देन सेक्शन A 15 mark into 2 you get the 30 mark overall. Then section B contains 15 question MTQ. This one may be the 5 question. Sorry, ultimately 3 question that constitute 5 question each into 2 mark. Then section C contains 2 question long question. This one are written or descriptive question. So here syllabus. The syllabus is divided among the 4 broad area specialist cost and management accounting technique. कौन कौन सी जो स्पेशलिस्ट कोस्ट है यानी कि कोस्टिंग के मेथड और अकाउंटिंग टेक्निक दिस इज योर फर्स्ट एरिया शो यू डिसीजन मेकिंग टेक्निक बजटरी एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इसके साथ ही लास्ट टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एड ऑन हो गया आई थिंक दे फॉरगॉट टू राइट तो ये तो था हमारा एग्जाम का पैटर्न और दिस ऑन द कोर एरिया ऑफ सिलेबस द कोर एरिया सिलेबस इज दिस 3 टॉपिक
which are eligible decision making technique, budgetary and control, performance management and control, and information system also. So this one a core area of syllabus. Examiner asks you any form here in section A, MCQ base also this three area, B also MCQ, and section C long question. And the summary notes, part A, special cost and management accounting technique. Have a five topic here. One is the activity based costing, target costing, life cycle costing, throughput, and environmental. This one only for MCQ based on the A section or section B. No written question ask you here. No written question from this topic. इसमें से कोई भी नौ लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी 20 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। और डेफिनेटली ये जो और एरिया ऑफ सिलेबस है ये सिर्फ एमसीक्यू के पर्पस के लिए ही पूछा जाएगा। पार्ट बी, डिसीजन मेकिंग टेक्निक। दिस वन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, लिमिटिंग फैक्टर, प्राइसिंग डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये बाकी जो एरिया है पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, they going to ask any section like these are eligible for section A, B and C also, even the MCQ and written question. So today we discuss traditional absorption costing. क्या होता है ये absorption costing? जो ओवरहेड होता है, जो ट्रेडिशनल का मीनिंग क्या हुआ? ओल्ड स्टाइल, old method. This is called old method. क्यों पुराना कहते हैं इसे? क्योंकि ये पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो आज से 20 या 30 ईयर पहले क्या है, हम लेबर का यूज ज्यादा करते थे, राइट। हम सारी की सारी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किसके बेसिस पे करते थे? मैनुअली करते थे या लेबर के थ्रू करते थे। और दिस इज अ सिंगल बेसिस फॉर absorption costing. Traditional absorption costing uses a single basis for absorbing all overhead into cost unit for a particular production department or cost center. क्या अगर सपोज करो एक कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए जो कि क्या बनाता है, सपोज करो यहाँ पे बनाता है मोबाइल के ग्लास गार्ड बनाता है। चलो, अब इस पर्टिकुलर सेंटर की ये वाली जो है प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट, मशीन ऑयल, सुपरवाइजर सैलरी, मशीन रिपेयर, इन सारी कॉस्ट को कंबाइन करके हम किसके बेसिस पे लेके आएंगे? दिस इज हम या तो लेके आएंगे वॉल्यूम के बेसिस पे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, या तो फिर लेबर्स आवर्स के बेसिस पे, या फिर डिपेंड ऑन सिनेरियो मशीन आवर्स के बेसिस पे।
तो इन सारी का मतलब जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे मान लो 80,000, 80,000 ओवरहेड की टोटल कॉस्ट है। और उसके बेसिस पे हम मशीन आवर्स के बेसिस पे, यहाँ पे मशीन आवर कितना आ रहा है, सपोज 16,000 आ रहा है, तो हम डिवाइड क्या कर देंगे दिस वन बेसिस, so we get OIR is a $5 for each labor or machine hour for machine hours. Now the question कि ट्रेडिशनल मेथड में हम ऐसा करते क्यों थे, क्यों करते थे? क्योंकि जो पहले थे, जो हमारे 10 या 20 साल या 30 साल पहले क्या था, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का यूज करते थे, राइट? सॉरी, ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करते थे रादर देन वी यूज मशीन। हम मशीन का उतना उपयोग नहीं करते थे जितना कि लेबर का यूज करते थे। हम सारी प्रोडक्शन क्या करते थे, मैनुअली करते थे। और उस मैनुअली प्रोडक्शन की वजह से क्या होता था, हमारी जो लेबर की कॉस्ट है वो हाई होती थी ओवरहेड की कॉस्ट से। सिंपल अगर हम कहें तो हमारे पास, या सिंपल वर्ड में कहें कि जो हमारी ओवरहेड की कॉस्ट थी, दिस वन लेस देन द तो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, प्राइम कॉस्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा आपका, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा आपका, आएगा मटेरियल प्लस लेबर, राइट? Material plus labor is your direct cost or overhead is your indirect cost. जब ओवरहेड की कॉस्ट लेस देन प्राइम कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर की कॉस्ट से कम हो, जो कि पॉसिबल कहाँ पे है, जहां पे हम लेबर का यूज ज्यादा करते हैं और मशीनों का यूज कम करते थे पुराने जमाने में। सो हम ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड में हम करते थे कॉस्टिंग यूजिंग अ सिंगल बेसिस फॉर ऑब्जॉर्बिंग ऑल ओवरहेड इनटू कॉस्ट यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर। क्या हम एक ही बेसिस को मानते थे सारी की सारी ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए। यहाँ पे सपोज मेरे मशीन का कॉस्ट है यहाँ पे, ओके, जो मशीन की कॉस्ट है चाहे वो रिपेयर है, आई थिंक रिपेयर इज बेटर, जो रिपेयर की कॉस्ट है मेरी 30,000 एक डिपार्टमेंट की, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए, राइट? देन मेरी इंस्पेक्शन कॉस्ट है यहाँ पे 24,000 और मेरी प्रोडक्शन रन की है कॉस्ट 10,000 ना।
सो 54 प्लस 64 और अदर हैंडलिंग मटेरियल, हैंडलिंग की कॉस्ट है मेरी ओवरहेड की, अदर मटेरियल हैंडलिंग चार्ज या कुछ भी और, एंड वन यू कैन से। हमें तो सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। वो है 16,000। ये सारी टोटल कॉस्ट आई 80,000। अब इन कॉस्ट को मैं किसके बेसिस पे एलोकेट करूंगा? मेरे पास सिंगल बेसिस के ऊपर ही करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो इस 80,000 को, मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं इसको वॉल्यूम के बेसिस पे एलोकेट कर दूं जिससे कि मेरे को पर यूनिट कैलकुलेट मिल जाए ओवरहेड की कॉस्ट, या तो मैं वॉल्यूम या यूनिट के हिसाब से कर दूं, या मैं क्या करूं, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं लेबर आवर्स के बेसिस पे और मशीन आवर्स के बेसिस पे इसे एलोकेट कर दूं। सो दिस इज कॉल्ड द सिंगल बेसिस। हम किसी भी टोटल ओवरहेड को सिंगल बेसिस पे, सपोज मशीन आए 16,000 और मैंने कैलकुलेट क्या कर लिया, $5 पर आर के हिसाब से जितना यूज होगा उसके अकॉर्डिंग मैं ओवरहेड की कॉस्ट को चार्ज करूंगा। सो दिस वन कंसेप्ट, ओके। So traditional absorption costing a single basis for absorb all overhead cost unit for a particular production department. So this one a setup, production setup, machine oil, supervisor, ये सारी कॉस्ट को हम क्या करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल बेसिस पे वो ले लेते हैं। इसकी वजह से क्या आता है, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड मशीन आवर के बेसिस पे हम उसको चार्ज करते हैं। In a business where labor is intensive, overhead may be absorbed based on a number of direct labor hours. जहाँ पे लेबर्स का ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे क्या करेंगे हम, लेबर के बेसिस पे, लेबर आवर्स के बेसिस पे हम एलोकेट करेंगे। देन इस पुराने सिस्टम में काफी सारी वो क्रिटिसिज्म थे जिसकी वजह से हमें कौन सा मेथड नया डेवलप करना पड़ा, तो हमें इसे कंसीडर करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। ये है न्यू मेथड फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री जहाँ पे क्या ओवरहेड की कॉस्ट हाई होती है। Traditional absorption costing was developed in a time when most manufacturing produce only a narrow range of products. मतलब only few products are manufactured by a industry. Few product manufacturing by industry. कि या तो कोई एक से दो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसके ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। Product underwent similar operation and consumed similar proportion of overhead. जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो बनाने की प्रक्रिया है, सिंपल कहें जो बनाने का ढंग है, प्रोडक्शन प्रोसेस आर सिमिलर सो, जिसमें कि ओवरहेड यूज लाइक अ सेम प्रोपोर्शन।
Overhead costs were only a very small fraction of total production cost. Direct labor and direct material costs accounted for the larger proportion of a cost. जो जिसमें कि सपोज ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो मान लो 5000, यहाँ मान लो, हाँ, नॉट रियली, सिर्फ अजम्पशन है, मान लो 5000 जो है ओवरहेड का कॉस्ट, 5000 ओवरहेड है और मटेरियल का कॉस्ट प्लस लेबर का कॉस्ट, दैट यू कॉल प्राइम कॉस्ट, ये कितना है 80,000। तो ये इन दोनों के प्राइम कॉस्ट के मुकाबले काफी स्मॉल है, इतना वरी नहीं करेगा, है ना, तो वो काफी स्मॉल है। दैट्स व्हाई वी यूज अ सिंगल बेसिस, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इन तीन ही कंडीशन में हम जो है ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करेंगे, जहां पे नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट हो, मतलब और फ्यू तरह के प्रोडक्ट ही बनाए जाते हों, प्रोडक्शन अंडरवेंट सिमिलर ऑपरेशन एंड कंज्यूम सिमिलर प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड। जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो क्या है, सिंपल है, यू कैन से सिंपल, और जिसमें कि प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड कितना कि सेम है। ओवरहेड कॉस्ट फॉर ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर द लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट। तो इसके बेसिस पे ही हम ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करेंगे। चलो अब हम देखते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। Yeah. So this one, illustration 1, absorption costing versus ABC costing. Suppose the co-plant manufacture four product W, X, Y, Z. Output and the cost data for the period just ended are as follow. W, X, Y, Z. Output कितनी है 10, 10, 100. Number of production run in a period. आपको प्रोडक्शन रन दिया है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी है, डायरेक्ट लेबर्स के लिए आर्स इंफॉर्मेशन है, दिस वन आर्स। On machine hours per unit, this one also given you for the overhead calculation purpose. आपको क्या दिया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर $5, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे क्या हम कंसीडर करेंगे टोटल ओवरहेड को रादर देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वी कंसीडर हियर जनरल ओवरहेड, यानी कि टोटल ओवरहेड अपॉन अ बेस, अ सिंगल बेस। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो ओवरहेड की कॉस्ट वो हाई है, इसलिए हम मशीन आवर्स को बेस मान रहे हैं, दैट इज योर मशीन आवर। यू नीड टू फाइंड आउट द मशीन आवर, you need to multiply 10 multiply by 1, then you get what 10 here, then again, then third 30, then again 100, then again 300, and this you get the machine total machine hour is 440, right? So you get here the amount overhead absorption rate, what is this 308 upon 440, this is with the $70 for each machine hour, कि अगर मशीन आवर के लिए $70 है, W के लिए ओवरहेड का कॉस्ट क्या रहेगा 70, देन X के लिए 210, देन अगेन 70, देन 210। अब आपको निकालना क्या है, आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। मटेरियल का कॉस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है,
और लेबर के लिए आपको इंफॉर्मेशन है वो आर्स है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई किस के साथ करना है, $5 के साथ ईच को, या सो दिस वन 5, 15, 5, then 50. So you need to just sum up this 25 plus 70, you get the 95 first. So आइए एक बार प्रॉपर क्वेश्चन को एक्सेल फॉर्मेट में देख लेते हैं. Using a conventional absorption costing approach, the absorption rate for the overhead based on the following: direct labor hour और machine hour. हम क्योंकि ओवरहेड की कॉस्ट यहाँ पे हाई है, इसलिए हम अजम्पशन ले रहे हैं कि जो बेस क्या है, मशीन आवर्स, राइट. उसके बेसिस पे हमने टोटल कॉस्ट, दिस इज अ टोटल कॉस्ट अपॉन मशीन आवर्स के बेसिस पे हमने क्या निकाला, ओवरहेड रेट निकाला, OAR, दैट इज 70 पर डायरेक्ट मशीन आवर्स, नॉट मशीन आवर्स, राइट. देन आउटपुट हमको गिवन है 10, 10, 100, 100. WX प्रोडक्ट है. डायरेक्ट मटेरियल हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और डायरेक्ट लेबर हमको टाइमिंग गिवन है, हम सिंपली $5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और डायरेक्ट लेबर के लिए हमने ऑलरेडी ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, गिवन टाइम इज आल्सो सेम 13141, मशीन आवर्स भी इसी पैटर्न में दिए, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दिस वन वी गेट द सम ऑफ दिस ऑल अमाउंट एंड वी गेट द कॉस्ट पर यूनिट. सो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर लिसनिंग.